السلام علیکم ناظرین، چائے ٹائم میں خوش آمدید۔ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بہت اہم ہے اور بلکہ آنے والے بلکہ میں تو کہتی ہوں جتنے بھی دن ہیں وہ اہم ہوتے ہیں خواتین کے لیے، لیکن آج کا دن جو ہے عالمی طور پہ منایا جاتا ہے خواتین کے لیے۔ اور میں ہوں سنیا حسن۔ میں ہوں زائلہ سرحدی۔ سنیا نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے، عالمی عورتوں کا، خواتین کا دن ہے، یعنی کہ خواتین کا ہر وہ ایسپیکٹ جو وہ زندگی کو بہت خوبصورتی سے نبھاتی ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ نہ صرف ہم لوگ چائے ٹائم میں تو دو خواتین آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ہر وقت ہم خواتین کی رائٹس پہ بات بھی کرتے ہیں، ان کے لیگل رائٹس پہ بات کرتے ہیں، وہ جو محنت کرتی ہیں، ہم جو محنت کرتے ہیں، ہم لوگ کے کیا کردار ہوتے ہیں فرام بینگ بورن، یعنی بیٹی سے لے کر بہن سے لے کے بیوی، ماں، اتنے سارے رولز ہیں۔ اوبویسلی وہ مرد بھی نبھاتے ہیں، لیکن عورتوں کا سلائٹلی ذرا سا ماں کا درجہ جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی ہمارے ریلیجن میں، اسلام میں ذرا سا اونچا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جس کنٹری میں ہم لوگ رہتے ہیں، میں اور سنیا اور آپ سب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ عورتیں بہت اسٹرگل کر کے اپنا مقام حاصل کرتی ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم ساری ان خواتین کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھی جنہوں نے اس مقام تک وہ پہنچی، انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اپنا نام روشن کیا۔ کس طرح کیا، کیا کرتی ہیں وہ دن بھر، اور اپنی محنت کو وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں گی جن کو ہم لائن پہ لے سکیں گے، ورنہ ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے تھرو آؤٹ دس شو۔ بالکل، اور ہماری کوشش یہ تھی، ہم صبح سے سوچے تھے کہ کیا کریں آج اس حوالے سے، لیکن اور ہم لوگ پورے سال یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے خواتین کے حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی ان پہ تیزاب ڈال دیا جاتا ہے، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان کو دفنا دیا جاتا ہے، کاروکاری کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آج کا دن ان لوگوں کے نام کریں، ان خواتین کے نام کریں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اور ناظرین، ہمارے پاس آج کچھ ایسی لسٹ موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور بہت سے لوگوں کا ایم شور آپ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، تو ویل بی ڈسکسنگ دیٹ۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں، وہ تمام خواتین ہماری بہنیں ہمیں اگر دیکھ رہی ہیں تو ہمیں کال کر سکتی ہیں اور ہم سے کوئی بھی چیز شیئر کرنا چاہتی ہیں خواتین کے حوالے سے، کوئی بھی پیاری سی بات ایک عورت کے لیے آپ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں، لیکن اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ لائن پہ لیں، لیکن ہمارے ساتھ لائن پہ آ چکی ہیں فرزانہ راجہ صاحبہ اور ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی باتوں کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم فرزانہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور آپ کو سب سے پہلے آج خواتین کا عالمی دن مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ ناظرین، فرزانہ راجہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، شی از آلسو ممبر آف نیشنل اسمبلی، ناٹ جسٹ دیٹ، وہ چیئر پرسن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی BISP کے۔ اس کے حوالے سے فرزانہ صاحبہ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے، انکم سپورٹ پروگرام کیا کرتا ہے کام؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کرنے کے لیے، خواتین کو امپاور بنانے کے لیے اور ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا قیام کیا، جو کہ 2008 میں ہوا۔ اس میں ٹوٹلی جو فوکس ہے وہ فیملیز کے ساتھ ساتھ خواتین کے اوپر ہے، تاکہ ہم سپورٹ خاتون خانہ کے ذریعے کرتے ہیں تاکہ وہ خاتون امپاور ہو، اور ان کا شناختی کارڈ سب سے پہلے بنانا ہوتا ہے تاکہ ان کو پاکستان کی شناخت دیں۔ تو الحمدللہ آج میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کی حکومت نے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 6 ملین خاندانوں کو شامل کیا ہے ہمارے ساتھ، اور 6 ملین خاندانوں میں تقریباً 4 کروڑ لوگ شامل ہیں، اور یہ 6 ملین وہ خاندان ہیں، 60 لاکھ خاندان جن کی خواتین جو ہیں وہ گھر کی سربراہ ہیں، اور ان خواتین کے ذریعے اپنے گھر میں بچوں کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن اور ان کے جو گھر میں ضروریات زندگی ہیں اس کا فیصلہ خاتون خانہ کرتی ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک فاٹا سے لے کر بلوچستان تک پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اچھا، مجھے تھوڑی سی بات بتائے گا کہ فرزانہ صاحب، اب اتنا بڑا انکم سپورٹ پروگرام ہی چل رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ہم نے رورل ایریاز میں یہ چیز دیکھی کہ خواتین سب سے زیادہ کام کرتی ہیں، تو اس کے ذریعے، اس انکم سپورٹ کے ذریعے کیا چینجز آئے ہیں ابھی تک؟ کتنا بڑا ڈراسٹک چینج ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ یقیناً آپ جب ان 4 کروڑ خواتین کے پاس جائیں گی تو آپ ضرور دیکھیں گی کہ ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر آپ فائٹ کی رپورٹ دیکھیں، USAID کی رپورٹس دیکھیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھیں، تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ ان خواتین نہ صرف امپاور ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ان خواتین کا کردار بہت زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں صرف کیش گرانٹس 1000 روپے نہیں ہیں، اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے کی لائف انشورنس اس خاندان کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خاندان کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے وسیلہ تعلیم پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور یہ 30 لاکھ بچے ہیں جن کو اس سال سے اسکول بھیجنا شروع کیا جا رہا ہے 5 سے 12 سال کی عمروں میں۔ اسی طرح سے اس گھر میں اگر کوئی ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کے لیے 1.5 لاکھ لوگوں کو پہلی دفعہ انتخاب کیا گیا ہے انہی خاندانوں میں سے، تاکہ یہ اپنے بھائی، بیٹی، بہن جس کو بھی نامینیٹ کرنا چاہیں یا خود کرنا چاہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر 3 لاکھ کے کاروبار کے لیے وسیلہ حق
का प्रोग्राम इनके लिए शुरू किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ खुशी के साथ शेयर कर सकती हूँ कि 20,000 खवातीन पूरे पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रही हैं, जो मालिक हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखती जाएंगी कि वक्त के साथ साथ ये तादाद लाखों में इंशाअल्लाह। प्रधान साहब एक छोटी सी मुझे बात बता दें, जो इनकम हो जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो देही इलाके में, तो ये वेरी करती है या ये सेम एक जैसे अमाउंट है? नहीं, वेरी नहीं करती। तमाम फैमिली को जो 60 लाख खानदान है, अगर एक सुई भी मिलेगी तो सबको बराबर मिलेगी और अगर एक पेन मिलेगा तो सबको बराबर मिलेगा। यही इंसाफ का तकाजा भी है और आइन भी यही कहता है और कानून भी। लेकिन इन खवातीन में खुसूसन मैं उन खवातीन के लिए बहुत खुश हूँ, मैं सबके लिए खुश हूँ, लेकिन जो फाटा की खवातीन है, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की खवातीन है, मैं उनसे इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि वो आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और ये इमेज और ये इम्प्रेशन जो था कि खवातीन इन इलाकों से आगे नहीं आती, ये कारोबार नहीं करना चाहती, इनके मर्द इजाज़त नहीं देते, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन खवातीन को बाहर देख के इतनी खुशी होती है कि लोगों की इस सोच को उन्होंने गलत साबित किया। बिल्कुल, बहुत खराज तस्लीम हम आपको पहुंचाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और होपफुली आप लोग करते रहेंगे। हम जैसे लड़कियों के लिए हम भी इसी में शामिल हैं क्योंकि हम भी यहाँ की लड़कियाँ हैं। एक लास्ट क्वेश्चन प्रधान साहिबा, सॉरी आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, फ्यूचर में व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू, आप इसमें ये भी कहा गया है कि आपका विमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस से भी ताल्लुक है जो नेशनल असेंबली में जो औरतों को अपलिफ्ट करने का, उनका पोजीशन को अपलिफ्ट करने का काम करता है, तो आप इन द फ्यूचर पाकिस्तान की औरतों का क्या देखती हैं? किस तरह का स्टैचर होगा, किस तरह का उनका मुकाम होगा? मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल है, ख़वातीन बहुत काम करना चाहती हैं, सिर्फ उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक मौके की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हमने इनको फराहम किया है और पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत ही काबिल ख़वातीन हैं और जितना भी जिक्र किया जाए, जितने नाम लिए जाएं, वक्त उसके लिए बहुत कम होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं कि इसमें हम सबको किरदार अदा करना होगा। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है तो ये सियासत से बालातर प्रोग्राम है और इसमें ये कौमी असासा है, मुल्क को फलाई रियासत बनाने के लिए है और 23% आबादी को इसमें कवर कर लिया गया है जो कि गुर्बत की अता गहराइयों में रहते हैं और ये भी साइंटिफिक तरीके से गुर्बत शुमारी के जरिए जाना गया है। ये जस्ट मेरे और आपके कहने पे किसी को नहीं शामिल किया गया इस प्रोग्राम में। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ये होगा कि मीडिया, इंटेलिजेंस या सिविल सोसाइटी सब इसमें अपना किरदार अदा करके इसको एक कौमी असासा समझ के दिन तक ये पैगाम पहुंचाएं और दूसरी खवातीन जो इस वक्त तक उन तक अगर ये पैगाम नहीं पहुंचा तो उन तक भी पहुंचाएं कि हमने इतनी बड़ा एक प्लेटफॉर्म इनके लिए मुहैया कर दिया है। और वो जो था ना, एक सेमिनार्स के ऊपर वादे किए जाते थे कि ये होना चाहिए, ये कर देंगे, ये हो रहा है, हमने उसको ये कहा है कि हमने कर दिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि कर दिया के साथ अब आप भी साथ हैं, ये आपकी भी एफर्ट्स हैं और उसमें आपका भी किरदार है, आप सबका है और हम सबका है। मिलकर एक पाकिस्तानी कौम को का जो 50% या 52% खवातीन है, जब तक कि हम उनको फाल और नहीं बनाएंगे, उनका किरदार इसमें नहीं होगा तो आप मुल्क को तरक्की की बात तो क्या सोच भी नहीं सकते। प्रधान साहिबा, BISP में इनरोल किस तरह करती हैं खवातीन? आप लोग जाके उनको खुद उन तक पहुंचते हैं या वो उन तक आप तक खुद अपनी इंफॉर्मेशन देती हैं? नहीं, उन तक पहुंचने के लिए एक स्कोर कार्ड जिसको हम पॉवर्टी सेंसस कह रहे हैं, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, तो हमने 18 करोड़, आप कहेंगे आबादी तो 16 करोड़ है तो आप 18 करोड़ कह रही हैं, क्योंकि चूंकि आबादी का जो मर्दम शुमारी हुई थी वो 13 साल पहले हुई थी, सर्वे हमने इस साल खत्म किया है। तो जी 18 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन, बड़ा डाटा बैंक है जिसमें कितने लोग डिसेबल हैं, कितने लोग बच्चों के स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते, वो कलेक्ट किया है और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फरजाना राजा साहिबा हमारे साथ लाइन पे रहने का और हमसे बात करने का। और नाज़रीन, आप लोगों ने भी सुना उन्होंने क्या क्या बताया BISP के हवाले से, स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होपफुली वो लोग करते रहेंगे ये काम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी औरतों को और ख़वातीन को आगे बढ़ना, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है और ये बात हम सब जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं और उनको हम इंट्रोड्यूस करते चलते हैं। वो शी इज़ बिन इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी पिछले 12 साल से। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में स्पेशलाइज करती हैं और सारे टॉप लोकल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। और 2002 में ये वाहिद पाकिस्तानी थी जिनको डिक्लेयर किया गया था एज द टॉप 30 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन द वर्ल्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। और उनको 10 ईयर के स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए वर्ल्ड बैंक में दावत भी दी गई थी कि वो उसमें असिस्ट करें। हमारे साथ इस वक्त हैं अंदलीप अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट चाय टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड इट्स अ प्लेजर।
हाउ आर यू मैम? एंड शुक्रिया बहुत बहुत कि आप हमारे इस बहुत ही ख़वातीन ओरिएंटेड शो होता है हमारा, और सिंस आज इंटरनेशनल विमेंस डे है इसके हवाले से मजीद बात करेंगे। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, हमारे साथ लाइन पर नसीम जलील साहब भी मौजूद हैं। मसला ये है कि आज का दिन बहुत अहम है और सब बहुत बिजी हैं, इनसे बात करते हैं। सेनेटर हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने CNBC के लिए टाइम निकाला। हम थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं, खवातीन का सबसे बड़ा जलसा उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी फिर से बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं थी। नसरीन साहिबा, हम लोग ये कह रहे थे कि हम कुछ ही अरसे पहले हमने खवातीन का सबसे बड़ा जलसा आप लोगों ने मुनक्कद किया था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ, स्पेसिफिकली फॉर विमेन। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसकी मैं एक कारकुन हूँ, डिप्टी कन्वीनर भी हूँ, उसने जो मुजाहरा किया खवातीन की यकजहती का, और एक ऐसा जलसा खवातीन का मुनक्किद किया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा खवातीन का 12 फरवरी 2012 को। इसने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि कराची और कराची वाले जो हैं वो खवातीन के हकूक में बिलीव करते हैं, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के कहने पर खवातीन जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं। हमारे जलसे ने उन खवातीन को तक़वियत दी जो कि दूर दराज इलाकों में, जो कि अंदरून रही इलाकों में रहती हैं, जिन पे मज़ालिम और तशद्दुद मुस्तकिल होता है, उनको ये हौसला मिला कि एक ऐसी आवाज़ है जो उनके लिए भी उठ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जागीरदाराना वडेराना निज़ाम और जो सोच है उसमें खवातीन पे मज़ालिम के ढेर लगाए हुए, आए दिन जो वाक़यात होते हैं, मैं समझती हूँ कि उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये मुजाहरा जो था ये दुनिया को बताने के लिए था कि पाकिस्तान में सबकी सोच जागीरदाराना नहीं है, बल्कि हम बिलीव करते हैं कि खवातीन और मर्दों के हकूक जो है वो बराबर के हैं, और हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उसके लिए कवानीन बना रहे हैं, हम शऊर पैदा कर रहे हैं खवातीन में। क्योंकि जब तक शऊर ना, और ये शऊर दोनों मर्द और औरतों दोनों में होना चाहिए। हमने ऐसा माहौल कराची में पैदा किया है कि लोग जो है, माएँ बहनें बेटियां जो है वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ मर्दों के शाना बचाना हर शोबा है जिंदगी में काम कर रही हैं, और यही हमें पूरे मुल्क में इस पैगाम को फैलाना है। और इस ये जो सोच है, ट्राइबल सोच जो है, जो जागीरदाराना सोच है, उसको हम नसीम साहिबा, हम हमारी खवातीन पे मज़ालिम खत्म हो। जी ठीक है नसीम साहिबा, हुकूक की हम लोग बात करें कि बराबर के हुकूक होने चाहिए, लेकिन अभी भी खवातीन को मुकाम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। आपको लगता है कि शऊर की कमी इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, शऊर की कमी है। क्योंकि जब हम जिस माहौल से निकलते हैं, हम वही कुछ अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। एक माँ जो है वो पूरी नस्ल की तरबियत करती है, आप समझें। तो जब घर में अगर मर्दों और औरतों में तफरीक बरती जाएगी, अगर लड़कों को प्रेफरेंस दी जाएगी लड़कियों पे, और ये समझा जाएगा कि वो खवातीन जो है वो अदना चीज है, तो फिर तो यही सोच लेके लड़के बड़े होंगे और पूरा मुआशरा जो है वो उसी सोच को अपनाएगा। लेकिन अगर माओ में, औरतों में ये शऊर पैदा हो जाता है कि नहीं, हमारे हकूक है, हम बराबर की इंसान हैं, उनको बराबर के मौके मिलने चाहिए। तालीम 72% हमारी मुल्क की खवातीन जो हैं वो नाख्वानदा हैं, इलिटरेट। हमें उनको तालीम देनी है, न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी। तो मैं समझती हूँ कि हमने बहुत कुछ अचीव किया इस जलसे के हवाले से। अच्छा, और अब एक और जलसा लाहौर में हम खवातीन का करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी इंशाल्लाह फकीदुल मिसाल होगा। इंशाल्लाह इसी तरह से ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में फैले इंशाल्लाह। नसीम साहबा, जलसे के अलावा आप लोगों की कोई ऐसी खासकर एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप लोग पहुँच रहे हैं औरतों तक? हमारी मुस्तकिल कोई ना कोई एक्टिविटीज जो है वो जारी रहती है। हमारे शोबा खवातीन है हमारे यहाँ, जो कि खवातीन से राब्ते में रहता है, और बाकायदा उनकी तालीम के लिए जो खवातीन पढ़ी लिखी हैं, उनसे हम कहते हैं कि जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं हैं उनकी मदद करें, उनको जाके पढ़ाएं। वोकेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त है, हम चाहते हैं। और हमारे यहाँ आए दिन एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिसमें खवातीन हिस्सा लेके अपने आप को बाकमाल बनाते हैं। शुक्रिया बहुत
बहुत बहुत नसरीन जलील साहिबा, आपने अपने बहुत कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. यू जॉइंड अस ऑन द लाइन नाजरीन. और ना सिर्फ कराची की बट हर सिटी में पाकिस्तान के इसी तरह का हम लोग जज्बा देखें औरतों के लिए. और इसी के साथ हम वापस जाते हैं जिनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था. मैं तो उनको यही कहूँगी, हाईली सक्सेसफुल वुमन ऑफ हर टाइम्स, एंड वो अपना एक इंस्टीट्यूशन भी रन करती हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के नाम से जाना जाता है लाहौर में. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑन चाय टाइम. कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू. Thank you so much and happy Women's Day to all of us women who are here, who are alive and who are representing the best face of Pakistan. पाकिस्तान में आप जैसी ख़वातीन जो हैं और हम जैसी ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान की वाकई जो सही फेस है वो रिप्रेजेंट करती हैं. तो मुझे बड़ी खुशी है आज कि हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं. बिल्कुल. और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वन बीइंग विमेन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग पाकिस्तानी विमेन. अंदिली साहब, आपको याद है मैंने आपको भी फ़ोन किया था, मैंने आपसे, आप इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैंने आपसे पूछा था कि इमरान खान साहब से बात हो सकती है. आपने कहा वो बहुत बिजी हैं अपने जलसे में. मुझे बताएं कि सब लोगों ने, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई ना कोई मैसेज दिया है इस हवाले से, ख़वातीन के दिन के हवाले से. खान साहब ने भी कोई मैसेज दिया था या वो हैं कहाँ हैं? जी 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 कोई मैसेज दिया उन्होंने? सबसे पहले सुबह मैसेज दिया उन्होंने कहा जी कि ये मैसेज जो है ये हर एक को रेजोनेट करे कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी विमेन है. पाकिस्तान में 52% जो हैं ख़वातीन हैं और ख़वातीन जो हैं वो जब तक हमारी साथ नहीं चलेंगी मुल्क की तरक्की पॉसिबल ही नहीं है. एंड तहरीक इंसाफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जी ख़वातीन को वो अहम शोबे दिए जाएँ जहाँ वो अपने आप को और अपनी सलाहियत को प्रोफेशनली भी नहीं पॉलिटिकली भी ज़ाहिर कर सकें. और आप देखें कि मेरे जैसी और बहुत सी ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ में, क्योंकि मैं बेसिकली आपकी तरह एक प्रोफेशनल हूँ. और इससे पहले जो रवायत थी वो ये थी कि जी यहाँ तो आप सियासतदान हो, आपका बाप ज़िम्मेदार हो, या आपका कोई लैंडलॉर्ड या आपका सरमायादार कोई बाप हो, तो फिर आप इनहेरिटेंस से आप उसकी बेटी हैं, तो फिर आप उस डायनेस्टी में आप सियासत में आ सकती हैं. लेकिन ये चेंज जो है ये हम लेके आ रहे हैं कि जो आम प्रोफेशनल है, जो मज़दूर है हम जैसा, जो मेहनत करता है और जिसकी के पीछे कोई ज़मीनें नहीं हैं और पीछे कोई जायदादें नहीं हैं, वो भी सामने आ सकता है. और उन्होंने बहुत अहम जो हैं पोजीशंस जो हैं तहरीक इंसाफ में, जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं पंजाब की, और बहुत सी और ख़वातीन हैं जिनको ये मौका दिया है कि रिगार्डलेस कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप अगर एक सच्चे अच्छे काबिल इंसान में आपकी सलाहियत है तो आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं. ख़वातीन, आपको पता है कि हमारी दो बहुत मेन जो है ना टारगेट्स हैं, एक यूथ और एक विमेन. क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान बनने में जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था स्टूडेंट्स ने और ख़वातीन. अंदिली साहिबा, पाकिस्तान को रिस्टोर करने में भी हमारा यही विजन है. बिल्कुल. हम मज़ीद भी आपसे बात करेंगे. हमें नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, और ये जो हमारे साथ नाज़रीन अंदिली साहिबा मौजूद हैं, ये टॉप 30 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में से एक हैं, डिक्लेयर्ड हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी मेहनत करने के बाद इसमें जहाँ पे आज मुकाम पे पहुँची हैं, तो क्या लक सबसे बड़ा फैक्टर था या मेहनत? एक छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं चाय टाइम विमेन स्पेशल.